So student, today we will discuss electrical field, electrical flux and electrical dipole. I don't know whether we will be able to cover all these three. Initially we will start with electrical field and flux. Field and field line, then flux, concept of flux and dipole. लास्ट सेशन में हमने देखा था एज पर कूलम लॉ कि जब दोनों चार्ज placed at a certain distance in a space, they exert some force. It's by nature, electrical charge nature. Like your universal gravitation law, the two mass body placed in a separate place, then they put gravitational force G universal constant, then m1 m2 divided by r square, and in case of our charge, that is q1 q2 over r square with multiplication of some constant, and that constant is the permittivity of your medium, right? And permittivity is nothing but the ability to release this. We'll come to this now. It will relate to this field effect now. कि कितना उसके अंदर से फील्ड लाइंस इजेक्ट हो सकता है फ्रॉम ए चार्ज अराउंड 360 degree. This is not only 360 in Hooke's plane, but in a point just like this, and all these 360 in a sphere like this, how much it will be pushing this field line. So what is field line? अब देखिए, so two charges, suppose this is q1 and this is q2 placed in a separate place. This is maybe positive and this is maybe negative, whatever you can consider like this. So ये दोनों जब certain distance में they are having a certain distance of q, they will in this case opposite charge, we know this will attract each other, and the force will be q1 q2 over r square, and this will be into some constant. That is, constant is nothing but constant is, that was 1 by 4 pi epsilon naught, right? ठीक है. अब देखिए, this is the Coulomb law. Now, थोड़ा सा conceptually later to understand the conceptual. If we remove this one, some of the charges from this one, think. Now what will happen? Now what will happen? कुछ भी नहीं. अब बोले कुछ भी नहीं है, मुझे the force applied नहीं है, only one charge is there, so there is no force. No, it is not like that. अब conceptually थोड़ी समझो. मान लीजिए अभी Q2 को मैं अलग अलग पोजीशन में, this is Q2, this is Q2, negative 1, of course negative 1, Q2, maybe Q2, maybe Q2 here, maybe Q2 here. Now see, every position of Q2 depending upon this, all these things, this is R1, maybe this is R2, this is maybe R3, this is maybe R4. And distance from the Q charge, this one point, suppose this is a point like this, so the distance from this one. Now every point, facing some, it will face some pulling force, electrical force. How it will pull the electrical force? अगर इसके अंदर से कुछ नहीं है, if it is not something, it is not exerting anything. In absence of Q2 in different place, it is having some force like some force. कुछ तो है उसके अंदर जो जैसे मैं इस चार्ज को अलग अलग पॉइंट में ला रहा हूँ, it is actually feeling some force. How it is possible if it is Q1 having no external force, it is actually giving around the space. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ.
अगर ये Q2 को अलग अलग पोजीशन में Q1 के रिस्पेक्ट में अलग अलग जगह में पोजीशन प्लेस करता हूँ, then Q2 is feeling some कूलम फोर्स। तो ये कूलम फोर्स अगर Q1 कुछ नहीं एग्जर्ट कर रहा है, लेट्स थिंक इन अदर वे, अगर Q1 ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो Q2 को फोर्स कैसे मिल रहा है भाई? ओके, दिस मीन्स Q1 actually giving some force line, some vector, it is creating some vectors which is felt by the Q2 charge when it is placed around this Q1। यानी Q2 जब भी हम Q1 के रेस्पेक्ट में उन टच इन सराउंडिंग लाते हैं, Q2 feels some force depending upon its positivity or negativity, it will feel some force, Coulomb force, that is the Coulomb force only। तो that means Q1 actually giving some aura effect, you can say some wave effect, some superimposing some force effect around its own surroundings, by which any other charge when come in surrounding some in touch from a certain distance, it feels some Coulomb force। Actually, now it is actually explained in a different way। Actually, the Coulomb force है, now again I make the Coulomb force, this one is K(Q1 Q2) by R square। तो एक्चुअली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि दिस इज Q1 के अंदर कितना फोर्स है? Q1, अगर फोर्स Q1 ड्यू टू Q1 ओनली, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कितना बोल सकते हैं? इट इज एक्चुअली द डिवीजन, कि ये वाला पार्ट जो है Q1 दे रहा है, ये जो पार्ट है, दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, इट इज एक्चुअली गिविंग द पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल, यानी एक चार्ज बॉडी है। नाउ लेट इट एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे अगेन। ये चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है। अब इसके अंदर ये कितना कैपेसिटी रखता है, बिकॉज ऑफ दिस प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस को अट्रैक्ट करता है। सो देयर इज सम इनबिल्ट पुलिंग फोर्स फॉर a negative charge, but some other positive charge and इनबिल्ट रिपल्सिव फोर्स। तो ये अकेला क्या कर सकता है? तो इसके अंदर कुछ ऐसा फील्ड इफेक्ट, इस चीज को होता है फील्ड इफेक्ट और चार्ज इफेक्ट, कितना इसके अंदर इंड्यूस इफेक्ट, यू कैन से लाइक दिस, कितना है, सो इसको हम डिवाइड करते हैं। और इसको कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? ना फील्ड इफेक्ट समझ गए। फील्ड इफेक्ट इज नथिंग बट वन सर्टेन चार्ज, what is it is contributing regarding Coulomb force, imaginary you can say, for better explained by the scientist and afterwards how the electrical phenomena will be happen। तो ये अकेला कितना इसको एग्जर्ट कर रहा है, खुद का एक मोमेंटम बना के रखा है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला कि एक Q1 अगर हम बोलते हैं कि Q1 की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, विशेष फोर्स एक्चुअली, और इसको हम E से भी डिनोट करते हैं। एक्चुअली में फोर्स करके बोला, बट इट इज एक्चुअली द डिनोटेड इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय प्रोड्यूस्ड बाय द Q1, ठीक है। जिसके अंदर नाउ यू सी, जिसके अंदर यहां पे एक बोलते हैं कि ये एक स्टैटिक चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। अब Q2 जो है, हम इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर चार्ज के एग्नेस्ट में, एक प्लेस चार्ज के एग्नेस्ट में एक टेस्ट चार्ज को हम अगर चारों तरफ घुमाएं तो कितना उसके अंदर जो फोर्स जनरेट कर सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलेंगे। और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, तो इसके अंदर फोर्स कितना जनरेट होगा ना? फोर्स इज जनरेटेड बाय Q2, सो दिस अमाउंट फोर्स, दिस नाउ इट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। Q2 को अगर मैं अलग से हटा दूं कि Q2 जैसे जैसे मैंने लिया, Q2 जैसे जैसे लिया हटा दिया, तो क्या क्वांटिटी बच गया मेरे पास ना? अलग अलग पोजीशन वेक्टर की डिस्टेंस के मुताबिक, अलग अलग डिस्टेंस की पोजीशन के हिसाब से, दिस विल क्रिएट
k q1 by r square amount at different position of q2 r's. So this is the electrical field generated by this one. और ये जो है now the electrical field this electrical field now this is kq, now it is make it generalize kq मान लो q मैंने लिया और उसको मैंने जनरलाइज करके उसको अपन एक पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर के अगेंस्ट में उसको देखेंगे कि कैसे कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है. नाउ दिस इज ए चार्ज q and this is test charge somewhere like this. This is test charge is always taken as a positive. ठीक है, test charge always taken as a positive. अब देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा दिस इज द डिफरेंस, दिस इज p r square. अब इसके अंदर जो टेस्ट चार्ज होगा इसके अंदर फोर्स क्या हो जाएगा. सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेटेड बाय दिस, you can say like this, some magnetic like effect will come to this one, flux and all these things, field lines. तो इस तरह के कुछ ऐसे चारों तरफ एक फोर्स लाइन क्रिएट कर रहा है और इसी को हम बोलते हैं फील्ड लाइन, क्योंकि वो अलग अलग डिस्टेंस में जाके उसकी जो फोर्स है एवं पे कम ज्यादा करेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो ये जो फोर्स होगा, सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेटेड बाय दिस चार्ज, दिस इज kq by r square, and test charge if it is 1 then it is the so force will be E into 1 because this is k q and to 1 over r square टेस्ट चार्ज. ठीक है, सो अलग अलग जगह में यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव लेता हूँ तो अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे फोर्स उसको एक्सर्ट करेगा. सो फोर्स इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज एंड द यूनिट विल बी, दिस यूनिट विल बी कितना हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ फोर्स बाय यूनिट चार्ज ओनली. सो E इक्वल टू F by 1 is what, this is the 1 coulomb. Already we placed the 1 coulomb, this is test charge, so its units will be Newton per coulomb or N. So the unit of electrical charge will be Newton per coulomb. मतलब अब देखिए, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड पर कूलम चार्ज को कितना फोर्स देके either attract, but it is a positive. Generally for test charge, the convention is to take the positive. How much force it will giving? If it is positive, then it will repulse, or if it is negative, it will attract. Because test charge is always positive. तो पर कूलम चार्ज में जो चार्ज है टेस्ट चार्ज को कितना रिपल्स और अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज इज इलेक्ट्रिकल फील्ड. वेरी सिंपल नो, आई थिंक यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अब जो है फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अब हम एक चीज और करते हैं इसके अंदर फील्ड. अब बहुत सारे सिस्टम चार्ज है, ये है सिस्टम चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज. अब पर्टिकुलर जगह में अब इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको समझ में आ गया यहाँ पे. अब मान लो अलग अलग फील्ड चार्ज जो है, जो प्लेस चार्ज है, अगर बहुत सारे प्लेस चार्ज हो और उसकी एग्नेस्ट में जो टेस्ट चार्ज है वो कैसे कैसे फील करेगा. यानी हमने एक चार्ज लेके चालू किया था. अब मान लीजिए सिस्टम चार्ज जो है बहुत सारे ऐसे हैं अलग अलग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, Q3 है, Q4 है. ठीक है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज 1 कूलम, दिस इज यूनिट चार्ज यहाँ पे है. अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके ऊपर कितना, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, से इट इज ए पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज लेट्स से इन अ पॉइंट, दिस ए पॉइंट, सो दिस इज 1 कूलम प्लस 1 कूलम. तो इस पॉइंट के उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पर्टिकुलर पॉइंट मल्टीपल पोजीशन चार्ज के हिसाब से ये कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड करें.
So depending upon all these things, it may be plus, this may be minus, this may be minus, this may be plus. So depending upon this, all force will be interact each other as per the Coulomb law. And the electrical field इसकी कितना होगा? Electrical field Q1 for this on loop to the test charge, it will be K Q1 over R square. Then EQ2 equal to KQ2 over R square, and this is EQ3. If I say this will be KQ3 over R square. This is R1, this is R2, this is this is R1, this is R2 square, and this is R3. Suppose this is R3 and this is R4. So this will be EQ3 equal to KQ4. Sorry, EQ4 equal to KQ4 over R4 square. ठीक है? Now this is the physical quantity. All these things are vectors. These fields are again in the vector. They are having some direction because of this पोजीशन वेक्टर कूलॉम लॉ में जैसे हमने पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है तो वेक्टर में काम कर लेता है. फोर्स इज नॉट. ठीक है? तो फोर्स एक्चुअली दिस वेक्टर इंक्लूडेड, सो इट इज द वेक्टर. सो ये फील्ड इफेक्ट जो है वो वेक्टर जैसे हुआ तो दिस इट इज पॉजिटिव, सो दिस फोर्स विल बी लाइक दिस विल बी लाइक दिस, and this will be attracted again because of opposite charges, and this will be repulsive. So particular इसके अंदर जो force overall in field effect overall आएगा, overall field, if I say E, so this will be vector, right? So this will be vector EQ1 vector plus EQ2 vector plus EQ3 vector and EQ4 vector and so on. And as for the calculation, this is nothing but the K Q Q1 R1 square plus K Q2 R2 square and this and everywhere it is the vector direction. What is this one? So this is the vector. यूनिट वेक्टर हमें लेना पड़ेगा. यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या होगा? इसकी यूनिट वेक्टर मान लो R1. R1 वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे? R1 कैप विल बी वेक्टर R1 ओवर मॉड ऑफ R1. तो सबकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी अपने को लेना पड़ेगा. ये किस डायरेक्शन में होगा ना? ये R1 कैप डायरेक्शन में. सो दिस विल बी R2 कैप डायरेक्शन में. ठीक है? R2 कैप डायरेक्शन. देन ऑल दिस थिंग्स लाइक दिस. ठीक है? So this will be common will be K only, and this will be summation of all that is Q1 R1 square and R cup. You can say this is I and this is 0 to whatever infinity, how many numbers you have given, this is maybe up to n. ठीक है? Qi over Ri and this is the R cap. Total electrical field generated is the sum vectoral, all vectoral charge, all vectoral field effect marked on this one as per its own charge, position, direction and the value of this field, each field. ठीक है? So next मान लीजिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर. मान लीजिए दो पैरेलल इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दो पैरेलल इलेक्ट्रिकल फील्ड है और उसके अंदर मान लीजिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. और इसके अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा हूं. सो दिस इज ए नेगेटिव वन इलेक्ट्रॉन, आई ड्रॉप इट इनटू दिस वन. इफ आई प्लेस ऑन यू, सो ये बेसिकली होगा क्या इसके अंदर से? तो जंपिंग करेगा बिकॉज दिस इज पॉजिटिव वन, सो इट विल कम टू दिस वन. ठीक है?
अब इसके अंदर अगर डिस्टेंस मान लो d है, इसके अंदर अगर डिस्टेंस d है तो क्या होगा, कितना टाइम के अंदर वो जंपिंग करके यहाँ पे पहुंचेगा या क्या स्पीड में पहुंचेगा। यू कैन टेक दिस न्यूटन्स लॉ एंड द कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ, सो द चार्ज, the force will, this will face the force will be eq over this is the distance। अगर दोनों की फील्ड इफेक्ट हमें दिया हुआ है कि दोनों की जो फील्ड इफेक्ट है, दिस इज द फील्ड इफेक्ट ऑफ दिस वन टू प्लेट्स, तो दिस इज द फील्ड इफेक्ट। अगर ये है तो उसके अंदर जो फोर्स उसने फील करेगा, दिस इज ई फील्ड इफेक्ट per unit charge, then this is the q. Q is here the electrical charge, 1 electron charge. So this will be E by d square. This is the force. ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल की जो ये चार्ज है, ये पोटेंशियल इसने दे रखा है, दिस इज 2 into 10 to the power e, they have given e is equal to they are given 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर ड्रॉप करते हैं तो कितना जल्दी उसके अंदर कितना टाइम लगेगा वहां पे पहुंचने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है अपने पास 1.6, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, तो ये जो है इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन देन d they have given like this, d is given 1.5 centimeter, 1.5 centimeter they have given, this is nothing but the 1.5 into 10 to the power -2 meter, and ऐसा यूनिट में हम ले लेंगे। ठीक है, so the force will be, so this is force will be 2 into 10 to the power 4 into E is the 1.6 into 10 to the power -19 and over D is 1.5 into 10 to the power -2 whole square, this will be the Newton। ठीक है, ये समथिंग वैल्यू आएगा। इसके बाद अपन जो करेंगे, दिस विल बी यू नो, अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पे यहाँ आने के फोर्स यू नो फॉर द न्यूटन, दिस इज द AMA, सो A इक्वल टू एक्सेलरेशन इन द फोर्स ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे। सो फोर्स जितना आएगा यहाँ पे, सपोज दिस वैल्यू दिस विल बी coming, so this will be 2 into 10 to the power 4 into 1.6 into 10 to the power -19 over mass of, and this is the 1.5 into 10 to the power, this is square and 10 to the power -4 this will be, and mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31 kilo. So this becomes now acceleration and it will becomes ये इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब यहां से जैसे मास एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, सो द टाइम विल बी इनिशियली इट विल बी 0, सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ g, यू नो हाफ ऑफ at स्क्वायर, u इक्वल टू 0, सो 2s इक्वल टू at स्क्वायर और 2s by a इक्वल टू t स्क्वायर। Okay, and from this t equal to you can find 2s over a, and s is here 2d, here it is a d, so if it is d then it will be, so t equal to 2 into this one s is the d here, so this is 1.5 into 10 to the power -2 over acceleration, you find this one the acceleration, you put it this one, all these things, suppose this is x whatever, so t will be like this, so this is x, you will calculate this is the more number। ठीक है, सो ऐसे करके हम फील्ड इफेक्ट के अंदर देख सकते हैं कि एक चार्ज एक फील्ड इफेक्ट में कितना क्विकली मूव कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लेंगे तो ये डिस्चार्ज होके, प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन का मास अलग होगा, इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन अगर यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो प्रोटॉन इधर चिपक जाएगा, तो प्रोटॉन अगर लेंगे तो यहाँ से ले,
ठीक है, प्रोटॉन अगर लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, उसकी टाइमिंग हम देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन कितना देर में वहाँ चला जा सकता है। तो दिस कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। फील्ड इफेक्ट के साथ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कैसे कैसे होता है ये बाद में कैपेसिटर में आपको आएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली उन्होंने आपको पुश कर दिया है कि भाई ऐसे दो प्लेट के अंदर चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे मूव कर सकते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं। अब हम फील्ड लाइन के साथ चलेंगे। देखिए जहां पे अपन देख रहे थे कि भाई फील्ड इफेक्ट जो है, जो फील्ड है, दिस इज द चार्ज अगेन, आई काउंट दिस वन चार्ज पॉइंट, दिस इज द चार्ज पॉइंट मे बी। सो टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज के डिफरेंट प्लेसिंग में, अलग अलग प्लेसिंग में, अलग अलग प्लेसिंग में, वो अलग अलग जगह में उसकी फोर्स वो फील्ड इफेक्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज क्यू, सो ई इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर एक्चुअली ये जो पोजीशन वेक्टर है, डिपेंडिंग अपॉन दिस, वो पोजीशन के हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज, इफ यू पुट अ टेस्ट चार्ज ओवर हियर 1 कूलम, ठीक है, यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज लेते हैं, दिस इज द रेडियस डिस्टेंस विद आर, सो यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, और सबसे ज्यादा जो फोर्स होगा, रेडियस आर इज टेंड्स टू 0, सो ई टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी आर सबसे कम जहां पे होगा, इस पोजीशन में जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज जनरेट करेगा, ठीक है, वो सबसे मैक्सिमम। उसके बाद धीरे धीरे इट विल रिड्यूस and slowly this will reduce. If it is reduced, so what is, we can represent this one for our own sake, own description, कि मान लो ये जो वेक्टर है, all this force vector सबसे मैक्सिमम, तो हम इसको जनरेट करते हैं लाइंस के डायग्राम पे। डायग्रामेटिकली कैसे दिखाते हैं कि भाई सबसे ज्यादा फोर्स शुरू में रहेगा, इसके बाद जो वेक्टर लाइंस है, इसके बाद जो फोर्स है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा कम हुआ, 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 और धीरे धीरे इसकी इम्पैक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। We can see this one, the field line. This is basically nothing, but the field line represents the amount of vector it is generating depending upon the डिस्टेंस। यहाँ पे r ज़्यादा है, यहाँ पे r सबसे कम है। यहाँ पे देखिए ये वाला r1 एंड दिस बिकम्स r2 एंड दिस बिकम्स r3 टोटल, दिस बिकम्स r4, ऐसे करके ये r4, तो धीरे धीरे ये ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, एंड जो सिस्टम चार्ज है, नाउ दिस सिस्टम चार्ज produce this field, it is all 360 degree, all 360 degree around this slow छोटा छोटा हो जाएगा धीरे धीरे, एंड ये चारों तरफ जो है it will be bigger, it will be smaller and it will be smaller like this। ठीक है, ऐसे चारों तरफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बड़ा छोटा 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 छोटा, ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। इसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बोलेंगे एग्नेस्ट ए सिस्टम चार्ज। फील्ड लाइन क्या है? ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स का, फोर्स वेक्टर का, कि अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से जो सिस्टम चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को कितना कितना फोर्स में एग्जर्ट कर रहा है, वो हम ग्राफिकली या पिक्टोरियली प्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज होगा इसके रेस्पेक्ट में, देखिए वो कम हो गया, हम यही समझाना चाहते हैं, बिकॉज दी रेडियस डिस्टेंस इज मच हायर, और इसके अंदर हो जाएगा क्यू के क्यू1 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, जो आर है इसका मान लो आर टू स्क्वायर, दिस वन वेरी हाई, एंड दिस इज के क्यू1 over r1 square, this distance is less,
तो इसीलिए हम प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये कम ज़्यादा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल जो फील्ड लाइन है, यहाँ पे एक चीज छूट जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एज वी डिस्क्राइब कि एक पर्टिकुलर सिस्टम चार्ज के अगेंस्ट में जो चारों तरफ जो है इसकी फील्ड लाइन अराउंड 360 डिग्री स्फीयर 3D में नॉट 2D में, यहाँ 2D में दिखा है बिकॉज वी कैन एक्सप्लेन ओनली बोर्ड इज 2D। सो एक 3D के अगेंस्ट में वो सारे फील्ड लाइन दे। अब देखिए यहाँ पे मजे वाली बात है, सपोज अब मैं पर्टिकुलर जगह में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, द फील्ड लाइन इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया अगर कटिंग करें, अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया कटिंग करें तो एंड इफ आई आस्क कि भाई इस एरिया के अंदर इस 2D के अंदर से कितना आपकी ये लाइंस फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, हाउ यू कैन डिटेक्ट दिस। सो बेसिकली हुआ क्या है कि ये पर्टिकुलर एक एंगल है, 3D एंगल है, और इसके अंदर जो एरिया है, सी दिस इज एरिया लाइक कॉनिकल एरिया, कि भाई ऐसे एक फील्ड चार्ज था यहाँ पे था, और इसके अंदर एक हम इसको बोल रहे हैं कि इसके अंदर से कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, दिस इज गोइंग दिस एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इसके अंदर से कितना क्रॉस कर रहा है, और ये है आपका सिस्टम चार्ज Q, दिस इज सिस्टम चार्ज Q। ठीक है, यहाँ पे कोई सिस्टम चार्ज है, मान लो दिस पॉजिटिव बड़ा, तो इसके अंदर जो फ्लक्स लाइन है ये कितना एंगल है, थीटा, फिर से कोण, एंड इफ इट इज द रेडियस ऑफ दिस वन इज r। ठीक है, and the distance from this, suppose this is h, for this cone it is h, but in case of this one, so field effect at this point may be q kq over h square। ठीक है, तो इतना फील्ड इफेक्ट इसके अंदर है। ये कितने अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये फील्ड इफेक्ट है। सो इसके अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, दिस इज अगेन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दिस इज पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर, यानी ये इसके अंदर से कितना जा रहा है ना, इसके अंदर से पाई r स्क्वायर हो रहा है, तो इस एरिया के अंदर इतना जा रहा है। ये जो क्यू पे r स्क्वायर है, h स्क्वायर है, कि ये इतने चारों के अंदर जा रहा था, ये सारे तरफ ऐसे ऐसे जा रहा था। यू कैन इमेजिन लाइक दिस, cuts a sphere, cutting of sphere with this one like this। So ये टोटल अंदर KQ h स्क्वायर इसके अंदर फील्ड इफेक्ट जा रहा है, और इसके अंदर पाई r स्क्वायर है और थीटा है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस में जाते जाएंगे, ये फील्ड इफेक्ट की डेंसिटी, बिकॉज दिस इज गोइंग अपवर्ड, डिस्टेंस इज गोइंग अपवर्ड, सो दिस इज, जैसे आप क्लोज आते जाएंगे ये डिस्टेंस इज स्मॉलर, सो फील्ड इफेक्ट विल बी हायर,